Hello students, welcome to your mathematics class. Myself Shilpi Srivastav, your mathematics teacher. So today we are going to start with chapter number 2, polynomials. It is one of the interesting chapters as you are going to study this in your um, senior classes also, in 10th, 11th and 12th also. You have already studied algebraic expressions in your junior classes. So polynomials includes algebraic expressions and all. So let's start the chapter and we are going to carry it very smoothly so that the concepts will be clear in each and every way. So let's begin it. So the topics which we are going to cover in this chapter are polynomials in one variable in exercise 2.1, zeros of a polynomial, exercise 2.2, remainder theorem, 2.3, factorization of polynomials in exercise 2.4, algebraic identities in exercise 2.5. So let's take and start with exercise 2.1, polynomials in one variable. Constant and variables. I hope you have already studied constant and variables, but let me take you and revise you all the constant and variables. So constant are the numerical values. वो numbers होते हैं जो कभी भी change नहीं होते. So these are the fixed numerical values. Like over here I have given the example 7, 3, -2, 3 by 7. These are all constants. Okay, let's go through the definition of constants. A symbol having a fixed numerical value is called a constant. जो एक सिंबल जो भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, जो चेंज नहीं होती है, दैट रिमेन सेम फॉर एवर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वेरिएबल्स. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? एज अ नेम सजेस्ट्स, वैरी. सो इट हैज टेकन फ्रॉम द वर्ड वैरी, दैट मीन्स जो कीप ऑन चेंज होता रहता है. सो द symbol which may be assigned different numerical values is known as variable. वो numbers जो keep on change होते रहते हैं. Suppose I have taken example 3x. So 3 will be the constant over here while x will be the variable. So the value of that expression will keep on changing as the value of x changes. Okay? So let's take one more example. It's written circumference of a circle. Everyone knows the formula that c is equals to circumference is equals to 2 pi r, where 2 is the constant. Pi is also a constant because the value of pi is what? 22 by 7. And then r. r को हम क्या लेंगे? r हमारा कीप ऑन चेंज होता रहेगा. जो भी रेडियस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्कमफेरेंस भी चेंज हो जाएगा. So r and c will be the variable over here. Okay, got it? So 2 and pi are the constants while c and r are the variables. Got it till now? कोई confusion here? I hope it is clear. Now let's move towards the algebraic expressions. Algebraic expression is are the expressions which includes both constant as well as the variables. If you look at this expression, it includes both constant and variables. While it जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं ये आपस में लिंक होते हैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से. इफ यू लुक ओवर हियर, 4 प्लस 9x माइनस 5x² y प्लस 3 बाई 8xy. तो ये जो आपस में लिंक हो रहे हैं ये किसके थ्रू लिंक हो रहे हैं? ये प्लस और माइनस से. इन्हें कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ठीक है. सो द डेफिनेशन ऑफ algebraic expression will be any expression containing constant, variables and operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. can be is going to called as algebraic expressions. Got it? Got it? अब ये जो आप देख रहे हो 4, 9x माइनस 5x² y, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग टर्म्स होते हैं. यही अलग अलग ये जो एक कांस्टेंट और वेरिएबल से बनते हैं और जो आपस में प्लस और माइनस के थ्रू डिस्टिंग्विश होते हैं उन्हें हम कहते हैं टर्म्स.
So we will move on to the next topic. The several parts of an algebraic expressions separated by plus and minus operations are called the terms of that expression. Suppose in this example, if you look over here, we have how many terms? 1, that is x cube, then 2 x square y, this will be the second term, then 4x y square will be the third term, y cube will be the fourth term and 7 will be the fifth term. तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हो रहे हैं जो प्लस और माइनस की वजह से सेपरेटेड हैं? वो कितने टर्म्स हो रहे हैं? 5. ठीक है, गॉट इट. नेक्स्ट मूव towards the next slide. It says coefficient. अब coefficient क्या होता है? वो नंबर जो हमारे एक्सप्रेशन के वो एक वेरिएबल के साथ फिक्स होता है उसे उसका कोफिशिएंट कह दिया जाता है. जो कांस्टेंट नंबर उसके साथ फिक्स होता है. सो ओवर हियर इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, इट सेज 2x. सो 2x में 2 क्या हो जाएगा? उसका x का कोफिशिएंट हो जाएगा. इन द सेम वे अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1. एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट हो जाएगा? 3, क्योंकि 3x स्क्वायर है तो 3 इसके पास में है, तो दैट विल बी द कोफिशिएंट 3. देन x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 और 1 कांस्टेंट टर्म रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगेगा, तो ये कांस्टेंट टर्म कहलाया जाएगा. गॉट इट. कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. सो इफ यू लुक एट द डेफिनेशन, इट सेज द नंबर मल्टीप्लाई टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट. सो अभी तक हम लोग ने पढ़े हैं टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं. नाउ अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. एज यू ऑल नो कि पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट्स प्लस कोफिशिएंट सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं. सो इट इज़ अ एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, मतलब उनकी पावर्स हमेशा होल नंबर्स में रहेगी, नेगेटिव में नहीं रहेगी. इफ़ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन, इट सेज 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, वी विल टर्म इट एज अ पॉलिनोमियल. और जिसमें वेरिएबल क्या है? एक कॉमन वेरिएबल दिख रहा है आपको, सिर्फ x. ठीक है. लेकिन इसकी अगर आप x की एक्सपोनेंट पावर देखो, एक्सपोनेंट देखो, तो इसमें सब पॉजिटिव में है. x इधर भी क्या है? +1 है. इधर x स्क्वायर है तो मतलब 2 हो गया. इधर x क्यूब है तो मतलब 3 हो गया. सारे पॉजिटिव में है, तो भी हम इसे पॉलिनोमियल कहते हैं. अगर वो नेगेटिव में होते, इफ यू look at the second example, it says 4x square 3x minus 1, तो वेरिएबल की पावर किस में हो गई? माइनस में हो गई. तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा बिकॉज इट इज हैविंग अ नेगेटिव पावर. गॉट इट. तो जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव में रहते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स रहती हैं उनकी, आपस में अंदर उनके सिर्फ पॉजिटिव पावर्स रहते हैं. अगर हम ये वाला एग्जाम्पल भी देखें, 3x क्यूब बाय 2, देन 2x स्क्वायर, देन -3, it is also not a polynomial because we are having x to the power 3/2 जो एक रूट में हो जाएगा, तो वो भी हमारा पॉजिटिव पावर में नहीं आएगा, इसलिए वो एक होल नंबर नहीं है, इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा. गॉट इट टिल हियर. सो लेट्स लुक the definition of polynomial: an expression in which the variables involved have only non-negative, that is only plus or 0 plus positive number, that means the whole numbers are only there, the integral power is called the polynomials. ठीक है. जिसकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगी उसी को पॉलिनोमियल में कहा जाएगा, मतलब जिसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर रहेगी उसी को पॉलिनोमियल कहा जाएगा. सो over here these are two more examples like 5x cube minus 4x square
minus 6x minus 3, so this will be a polynomial. While 5, 8x 3/2 प्लस 4x माइनस 2, तो ये क्योंकि ये एक तो ये रूट में हो गया और दूसरा ये वाला माइनस में हो गया, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं कहलाया जाएगा. गॉट इट? नाउ हाउ वी डिनोट पॉलिनॉमियल? वी डिनोट पॉलिनॉमियल एज p विद इन ब्रैकेट्स x अगर वो x के टर्म में है, q अगर वो दूसरा कोई एक्सप्रेशन है तो उसे हम q x के टर्म में अगर है तो x ले लेंगे, कोई भी टर्म में हो वो जो भी उसकी वेरिएबल रहेंगे उनके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे. तो वी डिनोट पॉलिनॉमियल एज p विद इन ब्रैकेट्स जो भी वो वेरिएबल होगा. गॉट इट? नाउ दिस इज अ डायग्राम विच क्लियरली शोज कि किसका क्या होता है. जैसे यहाँ पे 2 है, पहले हम टर्म्स देख लेते हैं. दिस एक्सप्रेशन इज हैविंग हाउ मेनी टर्म्स? राइट, इट इज हैविंग 3 टर्म्स, 2x square plus 3y and then 2. So these are the 3 terms which it is having. Now what are the constant term? कौन सा है इसका constant term? इसका सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 ये वाला. While what are the variable terms over here? क्योंकि x है, ये एक वेरिएबल होता है और y भी एक वेरिएबल होता है, तो ये कीप ऑन चेंज हो जाएंगे, तो ये इसके वेरिएबल टर्म्स हो गए. 2x स्क्वायर एंड 3y ये उसके वेरिएबल टर्म्स हो गए. अब एक्सपोनेंट कौन सा है? एक्स स्क्वायर है तो 2 उसकी एक्सपोनेंट पावर हो गई, वाइल y की पावर 1 है तो वो उसका एक्सपोनेंट हो जाएगा. देन कोफिशिएंट क्या है? इधर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, वाइल y का कोफिशिएंट क्या है? 3 है. गॉट इट? सो दिस इज द होल डायग्राम explanation. I hope so कि everything is clear till here. So let's move further. Now what we call polynomials in one variable. वो polynomial जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है उसे हम कहते हैं polynomial in one variable. अगर उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चल रहा है, जैसे if you look at this example x cube plus x minus 4, तो इसमें वेरिएबल क्या है? सिर्फ x ही है. while the power of x is changes while the वेरिएबल इज सेम, x ही x है. पहले वाले टर्म में x की पावर 3 है और दूसरे वाले टर्म में x की पावर 1 है. सो दिस इज अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल x एंड वी डिनोट इट बाय p और विद इन ब्रैकेट्स हम क्या लिख देंगे? x, क्योंकि सारे में वेरिएबल क्या है? x है. इन द सेम वे अगर हम लोग ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल लुक अराउंड r to the power 2 plus 2. So we are having r with the power 2 and this is also polynomial in one variable while 2 is a constant variable. So we denote this expression as p within brackets r. ये आपके ऊपर है, आप इसे q ले लो, z ले लो, it's totally depends upon you. So let's look towards the definition. The expression with contains only one type of variable in the entire expression is called a polynomial in one variable. उसको क्योंकि वो सारे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज कर रहा है इसलिए उसे polynomial in one variable कहा जाता है. Okay, got it till here? These are two more examples. px क्योंकि यहाँ पे x है इसमें तो हमने p और विद इन ब्रैकेट्स x लिया है. दूसरे वाले एक्सप्रेशन में क्योंकि r है वेरिएबल तो हमने विद इन ब्रैकेट्स r लिया है और उसको t से डिनोट कर दिया. सो दिस इज हाउ वी डिनोट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिग्रीज ऑफ पॉलिनॉमियल्स. अगर एक ही डिग्री पहले होती क्या है? डिग्री इज द मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर of that variable in that expression. Suppose if you look at this example, it says 5 raised to the power x raised to the power 5 minus x cube plus 7. तो इसमें it's a one polynomial in one variable. अब इसमें x की हाईएस्ट पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर कौन सी है इसमें x की? x क्यूब तो नहीं है, x टू द पावर 5 है, राइट? तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगी? 5,
क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है इस पूरे एक्सप्रेशन में 5. सो इसलिए डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 5. ठीक है. सो जिस जिस एक्सप्रेशन में जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, पावर जिसकी हाईएस्ट हो जाती है वो उसकी डिग्री हो जाती है. ओके. In case of a polynomial in one variable, the highest power of the variable is called the degree of that polynomial. Got it? Now, अब कोई एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ डिग्री 1 है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. अगर उसकी इस जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है ax² माइनस 9 या ax² प्लस 7, तो इसमें a की डिग्री पावर क्या है, डिग्री क्या है 2 हो गई है. और इस वाले एक्सप्रेशन में x है तो उसकी पावर हो गई है 2, तो फिर वो क्वाड्रेटिक हो गया. जब डिग्री हमारी 3 हो जाती है तो उसे हम क्यूबिक कहते हैं. और जब हमारी डिग्री 4 हो जाती है, जैसे इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन इट सेज x⁴ माइनस 1, तो इसे हम बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं. मतलब 2 बार क्वाड्रेटिक, क्योंकि वो 4 हो गई. क्वाड्रेटिक मीन्स 2 और बाय क्वाड्रेटिक मीन्स 4. सो टिल हियर वी हैव लर्न कि अगर 1 डिग्री है तो हम उसे लीनियर कहेंगे, 2 डिग्री है तो हम उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, 3 डिग्री है तो हम उसे क्यूबिक कहेंगे, और 4 डिग्रीज हैं तो हम उसे बाय क्वाड्रेटिक कहेंगे. गॉट इट? प्लीज़ आप इन स्लाइड्स को बार बार रिपीट कर लेगा, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे. ओके. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स. अगर सिर्फ एक टर्म है तो उसे मोनोनोमियल कहते हैं. लुक एट दिस एग्जांपल, 3x है तो उसे मोनोनोमियल कहेंगे. a² है तो एक ही टर्म आ रहा है हमारा तो मोनोनोमियल. अगर 2 टर्म आते हैं तो उसे बाइनोमियल कहते हैं. 3 टर्म आते हैं तो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं. ये तो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो ये क्लियर है. मतलब टर्म के बेसिस में जब हम उसे क्लासिफाई करते हैं तो वो मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हो जाते हैं. गॉट इट? लेट्स मूव टुवर्ड्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो व्हाट आर दीज? दीज आर दोज पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेंगी, कांस्टेंट टर्म्स रहेंगे हमारे. ठीक है, जैसे 7 हो गया, -27 हो गया, 3 हो गया. दीज आर कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. लेट अस लुक एट द डेफिनेशन. A polynomial containing one term only, एक ही टर्म रहेगा, consisting a constant term, one term रहेगा और वो constant term रहेगा, मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा. इस कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. और जो नॉन जीरो, जैसे ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये तीनों, और इनकी डिग्रीज क्या रहेंगी, 0 रहेंगी. द 0 रहेगी, मतलब 7⁻0 रहेगा तो फिर वो आंसर क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा. ओके. नाउ जीरो पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग वन टर्म नेमली 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल. जो 0 रहेगा और उसकी अब जैसे 0 हो गया तो दिस विल बी कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल. ओके. सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल. एंड द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर 0 की पावर 0 लिख दोगे तब आंसर 1 तो आता नहीं है, तो इसलिए उसको नॉन डिफाइंड कहा जाता है. ओके. नाउ दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल. इसका जो हम कैसे हम इसे डिनोट करते हैं. अगर अब आप देख रहे हो x⁴n, फिर x⁴n-1, फिर x हो गया, फिर अब उसमें क्या हो गया, a⁴0 हो गया, अब x नहीं रहा. तो ये आप देख रहे हो कि कैसे ये जो a0 है, a1 है, इफ़ यू लुक, अगर आप इधर से चलोगे लाइक दिस, सो a0 है, फिर a1 हो गया, देन an-1 हो गया, फिर ये n हो गया, मतलब कीप ऑन गोइंग ऑन. ठीक है, तो ये हो गया आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जहाँ पे n शुड नेवर बी इक्वल टू 0. सो ये क्या हो जाएगा, जैसे x⁴, देन x⁴, फिर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना. सपोज एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 4x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 15, तो हम लोग इसी तरीके से तो लिखते हैं. तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल. गॉट इट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स जो आपकी बुक में भी हैं होंगे शायद.
So go through them also, and these are also some of you. Find the degree of each of the polynomials given below. So the question number 1 says x5 minus x to the power 4 plus 3. अब इसमें इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? If you look at this expression, you will be seeing that the variable is x over here. So it's a polynomial in one variable. Now, if you look at this question, the highest degree is what? 5 only. So the answer will be the highest power, the degree of this polynomial will be 5. Now, if you look at the second example, it says 2 minus y square minus y cube plus 2y raised to the power 8. Now, what is the highest degree of here? It is also a polynomial in one expression with y as py. So, यहाँ पे highest degree क्या हो गई इसकी? 8 हो गई. So, this would be the answer. Now, 2 तो अब 2 आपका कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का आपको पता है कि एक्सप्रेशन में उसकी पावर क्या है? पावर 0 है. तो हमारा therefore the degree of polynomial is 0. Got it? Now let's see the important points that we have covered in this exercise. Number 1, a polynomial can have many terms but not infinite terms. पहली बात है कि एक पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकते. मतलब दे हैव अ स्पेसिफिक टर्म लिमिट. ठीक है. नेक्स्ट, द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ नेगेटिव. ये मैंने आपको बताया है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है. जो उसकी पावर है वो हमेशा पॉजिटिव में रहेंगी. ठीक है. नाउ नंबर 3, द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल मस्ट बी अ होल नंबर. वो वही सी चीज़ हो गई कि वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए. Number 4, the exponent of a variable of a polynomial cannot be a fraction. वो fraction में भी नहीं हो सकता. ठीक है. Now next, क्योंकि fraction में हो जाएगा, फिर वो root में हो जाएगा, फिर वो negative में चला जाएगा, या कभी कभी वो undefined हो जाएगा. Now polynomial with only constant term is called a constant polynomial. Now the degree of a non-zero constant polynomial is always 0. ये अभी पहले वाले एग्जाम्पल में भी जहाँ पे 2 था, थर्ड पार्ट में 2 था, तो उसकी डिग्री क्या आई थी? हमारी 0 ही आई थी. इन द सेम वे द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. गॉट इट? आई होप you have understood it well and you can easily solve the whole exercise 2.1. If you have any query, you are free to ask me that. Till then, stay safe, stay at home.